Good morning students. Welcome to our university class. Dear students, today we are going to start a new chapter of the economics sector of the Indian economy. Dear students, in this chapter we will discuss about the various sectors of the Indian economy. We will be compare to the one sector from the another sector, and we will also be discuss how we can be improve to each sector for the development of our country. There are the many topics in this chapter, so we are going to start to cover the first topic, classification of the Indian economy. Dear students, we can be classified to our economy on the basis of some general criteria. What are these criteria? We are going to discuss about these. So first is classification of the Indian economy on the basis of the economic activities of the people. Classification of the Indian economy on the basis of the economic activities we will discuss to each topic after the some time. Firstly, we have to know what is the criteria of the classification and what are these sectors. So we can be classified to the sector of the Indian economy on the basis of the economic activities of the peoples. Now the question put up, what is the economic activities? Economic activity means the activities which we perform to earn the money. मीन्स ऐसे एक्टिविटीज जिसको हम अर्निंग के लिए करते हैं, अपनी इनकम के लिए करते हैं. जब हम वही एक्टिविटीज सिर्फ यूज के लिए करते हैं, सिर्फ कंजप्शन के लिए करते हैं, तो इकोनॉमिक एक्टिविटी नहीं हो सकती है. फॉर एग्जांपल, जैसे जब हम कपड़ों की धुलाई घर पे करते हैं, अपने कपड़ों की धुलाई करते हैं, वो हम अपने सेल्फ यूज के लिए कर रहे हैं, तो यहाँ पर वो जो है वो इकोनॉमिक एक्टिविटीज नहीं है. लेकिन वहीं पे वॉशरमैन जब इन कपड़ों की धुलाई करता है, उसके बदले में कुछ चार्जेज लेता है, तो वो उसकी क्या है, इकोनॉमिक एक्टिविटीज है. तो हम कह सकते हैं इकोनॉमिक एक्टिविटीज जो होती है द एक्टिविटीज विच द पीपल परफॉर्म टू अर्न द मनी. यानी ऐसी एक्टिविटीज जो पैसा कमाने के लिए की जाती है, जो अर्निंग के लिए की जाती है, जो इनकम के लिए की जाती है, उसे हम क्या कहते हैं, इकोनॉमिक एक्टिविटीज. You can see the people are engaged in different kinds of economic activities such as agriculture, manufacturing the product, providing the different kinds of the services to the people. There are a lot of economic activities. बहुत सारी इकोनॉमिक एक्टिविटीज हैं जिनको काउंट कर पाना बहुत ही मुश्किल है. तो हम कैसे क्लासिफाई करते हैं इकोनॉमिक एक्टिविटीज की बेस पे? उसके लिए भी हम कुछ जनरल क्राइटेरिया देते हैं कि वो किस फील्ड की इकोनॉमिक एक्टिविटीज है. जब हम उसको पकड़ लेते हैं तो फिर हम डिफाइन कर लेते हैं. इसको हम डिटेल में आगे जाएंगे. फिलहाल हम इस टॉपिक को कवर करते हैं साथ में, क्लासिफिकेशन ऑफ द इंडियन इकोनॉमी. तो पहला मैंने आपको बताया कि क्लासिफिकेशन ऑफ द इंडियन इकोनॉमी
ऑन द बेसिस ऑफ द इकोनॉमिक एक्टिविटीज। इसमें 3 आते हैं, देयर आर द थ्री काइंड्स ऑफ द सेक्टर ऑन द बेसिस ऑफ द इकोनॉमिक एक्टिविटी ऑफ द पीपल्स। व्हाट आर these? These are first primary sector. First is primary sector. Second, secondary sector. Third is tertiary sector. अभी हम डिटेल में इसके बारे में बाद में जानेंगे। पहले हम जो 3 हमारे क्लासिफिकेशन है इंडियन इकोनॉमी के, उनके बारे में जानते हैं। तो पहला हो गया क्लासिफिकेशन ऑफ द इंडियन इकोनॉमी ऑन द बेसिस ऑफ द इकोनॉमिक एक्टिविटीज। एक तो डायरेक्ट क्वेश्चन बनता है, द बोर्ड कैन बी आस्क्ड अ डायरेक्ट क्वेश्चंस, नेम द इकोनॉमिक एक्टिविटीज, सॉरी नेम द सेक्टर ऑन द बेसिस ऑफ द इकोनॉमिक एक्टिविटीज ऑफ द peoples. So these sector are primary sector, secondary sector and tertiary sector. About this sector we will read in detail. The second is classification of the economy on the basis of the organization, on the basis of the organization, ऑर्गेनाइजेशन के बेस पर कौन कौन से सेक्टर हैं? देयर आर द 2 सेक्टर ऑन द बेसिस ऑफ द organization, and these are organized sector and unorganized sector. What are the organized sector and what are the unorganized sector? We will discuss it later. So we have covered the 2 sectors on the basis of the economic activities and on the basis of the organization. Now we are going to discuss about the third classification. Third is classification of the Indian economy, classification of the Indian economy on the basis of the ownership. ओनरशिप के बेसिस पे कौन कौन सा क्लासिफिकेशन है इंडियन इकोनॉमी का, अब हम इस टॉपिक को डिस्कस करेंगे। तो देयर आर
टू सेक्टर ऑन द बेसिस ऑफ द ओनरशिप। वो कौन कौन से सेक्टर्स हैं उनको हम डिस्कस करेंगे। ऑन द बेसिस ऑफ द ओनरशिप देयर आर द टू सेक्टर्स। फर्स्ट इज पब्लिक सेक्टर and second is private sector। So these are three sectors which contribute in our economy। So these are the three sectors। First, classification of the Indian economy on the basis of the economic activities of the people। What are the sectors? These sectors are primary sector, secondary sector and the tertiary sector। Second, classification of the Indian economy on the basis of the organization, and there are two sectors on the basis of the organization। First is organized sector and the second is unorganized sector। And third, classification of the Indian economy on the basis of the ownership। There are the two sectors on the basis of the ownership, public sector and the private sector। Now we will discuss about each sector in detail। So let us start the first sector, which is classification of the Indian economy on the basis of the economic activity of the people। Classification of the Indian economy on the basis of the economic activities। We have studied about this। The first is primary sector। Now the questions put up, what is the primary sector? So we can say, when we produce a good by exploiting natural resources, it is called primary activity। मैंने आपको पहले ही बताया है कि व्हाट इज द इकोनॉमिक एक्टिविटीज। इकोनॉमिक एक्टिविटीज मींस द एक्टिविटीज व्हिच वी परफॉर्म
प्राइमरी एक्टिविटीज। जब हम किसी चीज का उत्पादन करते हैं, जब कोई अर्निंग करते हैं, और कैसे करते हैं, नेचुरल रिसोर्स का प्रयोग करते हैं, एक्सप्लॉइट कर करके करते हैं, तो हम उसे प्राइमरी एक्टिविटीज कहते हैं। जैसे कि माइनिंग है। There are some example of primary sector such as mining, forestry, agriculture, etc. जैसे कि माइनिंग है, एग्जाम्पल बहुत सारे हैं इस सेक्टर के। आपका माइनिंग हो सकता है, एग्रीकल्चर है, फिशिंग, फॉरेस्ट्री एक्सेट्रा। मीन्स जब हम फिश को सेल करके अर्निंग करते हैं, जो फिशरमैन है वो फिश को सेल करके करते हैं अर्निंग। फिश क्या है, नेचुरल थिंग्स है, नेचुरल गुड्स है, तो हम उसको सेल करके अर्निंग करते हैं। तो वो कौन सी एक्टिविटीज हो गई, प्राइमरी एक्टिविटीज हो गई। जब हम एग्रीकल्चर एक्टिविटीज करते हैं, सपोज दैट हम शुगर केन प्रोड्यूस करते हैं, शुगर केन को हम मार्केट में सेल करते हैं, तो वो कौन सी एक्टिविटी, और अर्निंग करते हैं, तो वो कौन सी एक्टिविटीज है, प्राइमरी एक्टिविटीज है। हम कॉटन प्रोड्यूस करते हैं, कॉटन प्रोड्यूस करके रॉ मटेरियल के रूप में इंडस्ट्रीज को सेल करते हैं, वो कौन सी एक्टिविटीज है, प्राइमरी एक्टिविटीज है। तो ये प्राइमरी एक्टिविटीज वो होती हैं जिसमें हम नेचुरल रिसोर्सेज का क्या करते हैं, यूज करते हैं, एक्सप्लॉइट करते हैं और उससे अर्निंग करते हैं। तो ऐसी एक्टिविटीज कौन सी एक्टिविटीज कहलाती है, प्राइमरी एक्टिविटीज कहलाती है, प्राइमरी सेक्टर की एक्टिविटीज कहलाती है। बिकॉज मोस्ट ऑफ द एक्टिविटीज ऑफ दिस सेक्टर बिलोंग टू एग्रीकल्चर, सो इट इज आल्सो कॉल्ड एग्रीकल्चर सेक्टर्स। इट इज आल्सो कॉल्ड द एग्रीकल्चर एंड related sector, agriculture and related sector, because most of the activities of the primary sector belong to agriculture, so it is also known as the agriculture and related sector. It is the other name of the primary sector. बात मेरी समझ आप, मैं समझ रहा हूँ कि बात आपकी समझ में आ रही होगी। प्राइमरी सेक्टर कौन सा सेक्टर है, when we produce a good by exploiting natural resources, it is called primary activities. Because most of the activities of this sector belong to agriculture, so it is also known as the agriculture and the related sector. अब हम आते हैं अपने दूसरे टॉपिक के ऊपर। जो दूसरा है वो है सेकेंडरी सेक्टर। इतने ही क्वेश्चन इससे बनते हैं, बातें समझते चलिए, फिर आगे चलकर हम उसको डिस्कस करेंगे। सेकेंड आपका है सेकेंडरी सेक्टर। Now the question is what is the secondary sector? हम कह सकते हैं कि इन सेकेंडरी सेक्टर और सेकेंडरी सेक्टर covers those activities in which we change the natural product
into other product, into other products through the way of manufacturing activities in industries. अब आप देख रहे हैं सेकेंडरी सेक्टर्स कवर्स those activities in which we change the natural products into other products through the way of manufacturing activity in industries. यानी कि सेकेंडरी सेक्टर वह सेक्टर है जिसमें हम नेचुरल प्रोडक्ट को दूसरे फॉर्म में चेंज करते हैं, यानी नेचुरल प्रोडक्ट को रॉ मटेरियल के रूप में यूज करके उसका फॉर्म हम चेंज करते हैं। जैसे कि शुगर केन एक रॉ मटेरियल है, शुगर केन को हम किस फॉर्म में चेंज करते हैं? शुगर के रूप में चेंज करते हैं, चीनी के रूप में चेंज करते हैं। सेकेंड, कॉटन आपका रॉ मटेरियल है, कॉटन से हम यार्न बनाते हैं और यार्न के लिए यूज करके हम क्या करते हैं? क्लॉथेज बनाते हैं, कपड़े बनाते हैं। तो मैन्युफैक्चरिंग का मतलब ही होता है कि चीज़ों को मैन्युफैक्चर करना मतलब बनाना। बनाई जाएंगे इसका यूज करके नेचुरल रिसोर्सेज का यूज करके, प्राइमरी सेक्टर के प्रोडक्ट का यूज करके बनाई जाती है। बिकॉज मोस्ट ऑफ द एक्टिविटीज ऑफ दिस सेक्टर इट बिलोंग टू इंडस्ट्रीज, यानी बिना इंडस्ट्रीज के हम सेकेंडरी सेक्टर के प्रोडक्ट को बना नहीं सकते हैं। इसके मोस्ट जो एक्टिविटीज है वो इंडस्ट्रीज में परफॉर्म की जाती हैं, इसीलिए हम इसको क्या कहते हैं? इंडस्ट्रियल सेक्टर भी कहते हैं। इसका जो दूसरा नाम आपको मिल जाता है वो कौन सा मिल जाता है आपको? इंडस्ट्रियल सेक्टर। द सेकेंडरी सेक्टर इज आल्सो नोन एज द इंडस्ट्रियल सेक्टर। इसके भी एग्जांपल्स आपको बहुत सारे मिल जाएंगे, मैन्युफैक्चरिंग करने के भी बहुत सारे एग्जांपल्स आपको मिलेंगे जिसमें मैन्युफैक्चरिंग का काम होता है। इसमें मोस्टली दो चीज़ें इन्वॉल्व होती हैं। एक तो कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज भी इन्वॉल्व होती है। कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज मीन्स जैसे कि रोड्स बनाना है आपका, बिल्डिंग्स वगैरह कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज में आता है। और दूसरा एक हो जाता है प्रोडक्ट बनाना, यानी इंडस्ट्रियों में क्या बनाना? प्रोडक्ट्स बनाना। तो ये सेकेंडरी सेक्टर हो गया। There are some example of secondary sector. You can see some people are engaged in manufacturing the different kinds of the product in industries. अब हम आते हैं अपने तीसरे सेक्टर की तरफ और वो है टर्शरी सेक्टर। The third sector is tertiary sector. Now the questions put up, what is the tertiary sector? In tertiary sector, the people do not produce the things, do not produce the products, but they provide the services to the above two sectors and some other valuable services. टर्सरी सेक्टर की अगर हम बात करें तो टर्सरी सेक्टर कौन सा सेक्टर होता है? तो हम कहेंगे कि इन विच सेक्टर people do not produce the things but they earn
the primary sector and the secondary sectors, and also there are the some valuable services which they provide to the peoples. These are the basic needs of the peoples. We will discuss it in this topic. टर्सरी सेक्टर, टर्सरी सेक्टर आपकी समझ में आ रहा है? वो सेक्टर जिसमें हम सामान का उत्पादन नहीं करते हैं लेकिन हम सर्विस प्रोवाइड करके अर्निंग करते हैं, क्योंकि दोनों ही सेक्टर को कुछ सर्विसों की जरूरत होती है। सपोज करिए कि हमने प्रोडक्शन किया, क्रॉप्स का प्रोडक्शन किया गया, तो क्रॉप्स ले जाने के लिए हमको ट्रैक्टर वगैरह की जरूरत है। तो यहाँ पे जो ट्रैक्टर है, यानी जो ड्राइवर है ट्रैक्टर का, और ट्रैक्टर हमको प्रोवाइड करा रहा है, वो कौन सर्विस है, वो क्या कर रहा है? सर्विस प्रोवाइड कर रहा है। इंडस्ट्री पे ले जा रहा है, इंडस्ट्रियों से जो माल मैन्युफैक्चर हो रहे हैं, जो प्रोडक्ट तैयार हो रहे हैं, प्रोडक्ट कहाँ पे भेजे जा रहे हैं? होलसेलर के पास, और मार्केट में जा रहा है, मार्केट से होलसेलर के पास, होलसेलर से रिटेलर के पास आ रहा है। तो इस जो ये चैन है, जो ये साइकिल्स है, इसके बीच में हमको कुछ सर्विसेज की नीड पड़ती है। जो सेक्टर इस सर्विस को प्रोवाइड करता है वो सब टर्सरी सेक्टर कहलाता है। और दूसरी बहुत सारी वैल्यूएबल सर्विसेज हैं जिसमें हम दोनों सेक्टर को हेल्प नहीं करते हैं, लेकिन हम वैल्यूएबल सर्विस प्रोवाइड करते हैं। सपोज बैंकिंग, टीचिंग, हेल्थ सेक्टर, इट इज द बेसिक नीड्स ऑफ द पीपल्स, एंड नाउअडेज इट इज very important services which is demanded by the people's daily. तो टर्सरी सेक्टर वह सेक्टर होता है जिसमें हम किसी प्रोडक्ट को प्रोड्यूस नहीं करते हैं, कोई चीज बनाते नहीं हैं, लेकिन हम प्राइमरी सेक्टर को और सेकेंडरी सेक्टर को क्या करते हैं? सर्विस प्रोवाइड करते हैं। तथा इसके अलावा भी लोगों की बेसिक नीड्स से रिलेटेड कुछ सर्विसेज हैं जिनको हम इस सेक्टर्स में इंक्लूड करते हैं, रिलेट करते हैं। इट इज आल्सो कॉल्ड द सर्विस सेक्टर्स। नाउ द क्वेश्चन पुट अप, व्हाई इट इज कॉल्ड द सर्विस सेक्टर? द आंसर इज वेरी सिंपल, बिकॉज दिस सेक्टर प्रोवाइड्स द सर्विसेज, सो इट इज नोन एज द सर्विस सेक्टर। Nowadays the tertiary sectors contributing more and more in the economy of our country. tertiary sector आज बहुत तेजी से डेवलप कर रहा है। जो हम आपको टीचिंग की सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं, किस सेक्टर की एक्टिविटीज है? एग्जाम्पल आप लाइन ले सकते हैं, ये टर्सरी सेक्टर की एक्टिविटीज है, ये सर्विस सेक्टर है। तो हमने इस टॉपिक को कवर कर लिया, क्लासिफिकेशन ऑफ द इंडियन इकोनॉमी, और इसमें हमने एक क्लासिफिकेशन को पढ़ा है, एंड दिस इज द क्लासिफिकेशन ऑफ द इंडियन इकोनॉमी एंड द इकोनॉमिक एक्टिविटीज ऑफ द पीपल। और उसमें हमने पढ़ा कि देयर आर द थ्री सेक्टर्स एंड द बेसिस ऑफ द इकोनॉमिक एक्टिविटीज ऑफ द पीपल्स। द फर्स्ट इज प्राइमरी सेक्टर, सेकेंड इज secondary sector, and third is tertiary sector. And we have also discussed about these topics in detail. I hope all the things are clear and you are able to understand. If you have any doubts, you can call me or send me message on my WhatsApp. So dear students, this is all for today. और थैंक्स टू वॉच द वीडियोज।